Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक वन का मॉड्यूल वन इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन सेवन पॉपुलर रेसिस्टेंट टू द ब्रिटिश रूल जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear learners. Today we are going to study next topic, which is the uprising of 1857, causes, suppression, and consequences. So let's start. The revolt of 1857 started on 10th May when the company's Indian soldiers at Meerut rebelled. Called the Sepoy Mutiny by the British, it is now recognized as the first war of independence against the British rulers. Indian soldiers killed their European officers and marched towards Delhi. They entered the Red Fort and proclaimed the aged and powerless Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar as the Emperor of India. This rebellion was a major anti colonial movement against the aggressive imperialist policies of the British. In fact, it was an economic, political, and social struggle against the British rule. This severe outburst of anger and discontent shook the foundations of colonial rule in large parts of India. We will now study the causes of dissatisfaction among the Indian people which made them rebel against the ब्रिटिश रूल। 1857 का विद्रोह 10 मई को शुरू हुआ था, जब भारतीय कंपनियां के जितने भी सैनिक थे वो मेरठ में विद्रोह कर देते हैं। इन्हें सिपाही बोला गया। इसमें जो ब्रिटिश थे, ठीक है, उन्हें ये जो विद्रोह था, ब्रिटिश ने इस युद्ध को किस प्रकार देखा कि ये पहला जो युद्ध है, ये लोग अपने स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासक के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने यूरोपियन ऑफिसर्स को मारा और उसके बाद वहां से दिल्ली चले गए। जब वो दिल्ली में रेड फोर्ट के पास एंटर किए तो उन्होंने जो पावरलेस हो चुके थे, जो बूढ़े हो चुके थे, मुगल के सम्राट बहादुर शाह जफर को उन्होंने क्या बता दिया कि ये अब भारत के सम्राट है। ये जो विद्रोही थे वो एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के खिलाफ जितने भी हमारे उपनिवेशवाद थे उनके इन्होंने विरोध किया और साथ में एक ऐसा आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक संघर्ष था जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ रहे थे। और जो हमारे इंडियंस थे उनके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश था और ये आक्रोश फुट के बाहर निकला और इसमें जितने भी फाउंडेशंस थे कॉलोनियल रूल के भारत के लार्ज पार्ट्स में, उनको इन्होंने अपने गुस्से से हिला दिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जितने भी लोग थे वो असंतुष्ट क्यों थे, साथ में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्यों विद्रोह कर दिया। तो चलिए पढ़ते हैं पॉलिटिकल कॉजेस। The nature of colonial expansion through annexation became a major source of discontent among the Indian rulers. British wanted to acquire land and collect as much wealth for England as they could. Their policy of annexation, called Doctrine of Lapse and Subsidiary Alliance, led to a number of independent kingdoms being annexed to the British Empire. These were states that were enjoying British protection, but their rulers had died without leaving a natural heir to the throne. As a result, their adopted sons could now no longer legally inherit the property or receive the pension which was granted to them by the British. In this way, Lord Dalhousie annexed the Maratha states of Satara, Nagpur, Jhansi, and several other minor kingdoms. On the death of Bajirao II, the pension granted to him was abolished, and the claim of his adopted son Nana Sahib to receive this pension was denied to him. This interference by the East India Company was disliked by many Indian rulers. Before the policy of doctrine of lapse, the Indian ruler had a right to adopt an heir to his throne even if he was childless, but now they had to take prior consent from the British.
तो इसका पहले तो हम लोग राजनीतिक कारण देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का उठने का राजनीतिक कारण क्या था। तो ये जो कॉलोनियल एक्सपेंशन का जो नेचर था वो क्या था कि किसी भी तरह से जो इंडियन रूलर्स है उनसे उनकी जमीन को हड़प लिया जाएगा, उनके स्टेट्स को उनसे एनेक्स कर लिया जाएगा। ब्रिटिश क्या चाहते थे, वो जमीन चाहते थे और जितना से जितना हो सके उतना धन वो ले जाके लूट करके इंग्लैंड लेके जाना चाहते थे। उनका जो पॉलिसी था एनेक्सेशन का, उसे दो पॉलिसी था, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और दूसरा था सब्सिडियरी अलायंस, जिससे जितने भी इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे उनको ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया, एनेक्स कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। ये जो स्टेट्स थे वो पहले ब्रिटिश प्रोटेक्शन को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब उसके जो रूलर्स थे, जो उस स्टेट के शासक थे, अगर वो अपने खुद के वंश को नहीं छोड़ के जाते थे नेचुरली, तो उनका जो अ, भी मतलब कि अडॉप्टेड सन था, वो उन्होंने कभी कोई बेटा को लिया था, वो उस प्रॉपर्टी का वारिस नहीं होता, और जो भी पेंशन मिल रहा होता था वो भी उस बच्चे को नहीं दिया जाता था। इस तरह से जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने मराठा स्टेट्स के बहुत सारे छोटे छोटे राज्य को अपने कब्जे में कर लिया था। सतारा, नागपुर, झांसी और भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे। जब बाजीराव सेकंड मर गए तो उनका जो भी पेंशन जो ब्रिटिश की तरफ से मिल रहा था, जब उनके अडॉप्टेड सन ने क्लेम किया तो इस चीज को मना कर दिया कि अब आपको नहीं मिलेगा। और जो अडॉप्टेड सन थे बाजीराव टू के, वो कौन थे, नाना साहब, और इनको ब्रिटिश ने पेंशन देने से मना कर दिया। ये जो इंटरफेरेंस था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसे बहुत सारे जो भारतीय शासक थे उन्होंने इसे नापसंद कर दिया। और इस जो पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसमें जितने भी इंडियन रूलर थे, ब्रिटिश के आने से पहले इनके पास एक राइट था कि अगर वो अपना नेचुरली तरीके से, अगर वो उनका कोई वंश नहीं है तो वो अडॉप्ट करके अपने राजगद्दी पे उन्हें बैठा सकते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश शासकों का यहाँ पे शासन हुआ तो हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ा, ब्रिटिश से ही परमिशन लेना पड़ता था। Here is a map which showing India citing the major cities participating in the revolt of 1857। इस मैप में क्या दिखा रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट था इंडिया का जिसने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर एंड झांसी, ये कुछ माइनर किंगडम्स थे जो 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किए थे। The policy of annexation affected not only the rulers but affected all those who were dependent upon them, namely soldiers, craftspeople and even the nobles। तो ये जो annexation का पॉलिसी था, ये सिर्फ शासकों को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि वो सभी को जो अपने शासकों पर निर्भर थे, जैसे कि सिपाही, क्राफ्ट पीपल हो गए, और यहाँ तक कि जो विद्वान थे, नॉवेल्स थे, उन्होंने को भी ये चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। Even the traditional scholarly and priestly class lost the patronage which they were getting from these rulers. Thousands of zamindars, nobles, and polygons lost control over their land and its revenues. The annexation of Awadh on grounds of misgovernment was also resented by the Nawab, who was loyal to the British. No alternative jobs were provided to the people who lost their jobs when the British took over Awadh. Even the peasants had to pay higher taxes एंड एडिशनल लैंड रेवेन्यू। यहाँ तक कि जो पारंपरिक ढंग से जितने भी विद्वान थे या फिर जो पुजारी थे, उन्होंने अपने प्रतिष्ठा को खो दिया जब ये शासक यहाँ पे आए थे हमारे इंडिया में। हजारों जमींदार, नॉबल्स और जो पॉलीगर्स थे, उन्होंने लैंड के ऊपर से कंट्रोल खो दिया, उनके टैक्सेस से हाथ धो बैठे। और ये जो अवध के जो अवध था ना, वो एक राज्य था और उसमें बहुत गलत तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट किया जाता था, गवर्न बहुत गलत तरीके से किया जाता था। और ये जो नवाब थे फिर भी वो ब्रिटिश के लॉयल थे, वो ब्रिटिश को प्रति लॉयल थे। और यहाँ पे जब अवध का एनेक्सेशन हुआ, जब अवध ब्रिटिश के कब्जे में जाता है, तो लोग तो जॉबलेस हो गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी अल्टरनेटिव जॉब्स प्रोवाइड नहीं करवाया गया था। जो ब्रिटिश के आने के बाद जब ब्रिटिश ने अवध को एनेक्स किया तो इनके पास कोई तो जॉब बचा नहीं। यहाँ तक कि जो किसान थे उन्हें बहुत ज्यादा हाई टैक्स देना पड़ता था और साथ में एडिशनल लैंड रेवेन्यू भी देना पड़ता था। The continuous interference of the British in the basic way of living, traditional beliefs, values, and norms was seen by the masses as a threat to their
Religion. The British administrators gradually became arrogant and gulf between them and the people widened. तो जो ब्रिटिश शासक थे वो बार बार बहुत ही अलग अलग तरीकों से इंडियंस के लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे, जैसे कि पारंपरिक ढंग से जो उनका पारंपरिक विश्वास थे उसमें, फिर जो उनके मूल्य थे या फिर जो उनकी जो भी धार्मिक कृत्य थे उसमें वो इंटरफेयर कर रहे थे, ठीक है, जिससे जो हमारा रिलीजन था वो खतरे में आ चुका था और जो ब्रिटिश शासक थे वो ज्यादा एरोगेंट हो चुके थे और जो लोग थे वो इसके प्रति जागरूक हो चुके थे। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉजेस। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा आर्थिक कारण था जिसकी वजह से 1857 की युद्ध लड़ी गई। अनदर important cause of the revolt was the disruption of the traditional Indian economy and its subordination to the British economy. The British had come to trade with India but soon decided to exploit and impoverish the country. They tried to take away as much wealth and raw material from here as they could. The Britishers kept high posts and salaries for themselves. They used political control to increase their trade as well as export and import of foreign goods. All means were used to drain India of her wealth. Indian economy now suffered under the British policies since they worked against the interests of Indian trade and industry. Indian handicrafts completely collapsed. The craftsmen who received royal patronage were impoverished when the states were annexed. They could not compete with the British factory made products where machines were used. It made India into an excellent consumer of British goods and a rich supplier of raw materials for the industries in England. The British sold cheap machine made clothes in India, which destroyed the Indian cottage industry. It also left millions of craftsmen unemployed. The British also sent raw materials to England for the factories there. This left little for the Indian weavers. The Britishers also imposed heavy duties on Indian made goods. Now they could reap huge profits as there was no competition for their goods. Thus, the British drained India of her wealth and her natural resources. फिर क्या होता है कि एक और बहुत ज्यादा मुख्य कारण है इस विद्रोह का, वो था हमारे भारतीय परंपरा का जो आर्थिक तरीका था जिससे हम लोग पैसे अर्न करते थे, उस पे भी ब्रिटिश ने उसे भी एनेक्स कर लिया था, उस पे भी कब्जा कर लिया था। जो ब्रिटिश थे वो तो व्यापार के उद्देश्य से भारत में आते, लेकिन उन्होंने तुरंत ही निश्चय क्या किया कि हम भारतवासियों का शोषण करेंगे और साथ में इस देश को खाली कर देंगे, मतलब यहाँ का जो धन संपत्ति है वो अपने यहाँ लेके चले जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ से ज्यादा संपत्ति बटोरी, साथ में जो रॉ मटेरियल्स थे जितना हो सके वो यहाँ से इंग्लैंड लेके चले गए। ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हाई पोस्ट यहाँ पे जो हाई पोस्ट कैप्चर कर लिया, फिर जो सैलरीज था वो अपने लिए रख लिए हाई पोस्ट वाले के लिए, और उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल इंक्रीज कर दिया। साथ में उनको जो व्यापार था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फॉरेन गुड्स पे उस पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। इट मीन्स कि उन्होंने पूरी तरीके से भारत की संपत्ति को खाली करना शुरू कर दिया था। भारतीय जो हमारा आर्थिक स्थिति था वो ब्रिटिश के पॉलिसीज के कारण पूरी तरह से सफर कर रहा था। इसलिए जितने भी इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्री थे उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ये जो ब्रिटिश थे वो वर्क कर रहे थे। ये जो क्राफ्ट्समैन थे वो एक अच्छा उनका स्थिति था ब्रिटिश के आने से यहाँ पे पहले, लेकिन जब ब्रिटिश आते हैं तो पूरी तरह से उनकी स्थिति कोलैप्स हो जाती है। हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे वो ट्रेड हो या फिर इंडस्ट्री हो, पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है। क्राफ्ट्समैन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और वो ब्रिटिश फैक्ट्री के साथ compete नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी फैक्ट्री था या कंपनी था वो जो भी प्रोडक्ट्स अपना बनाता था वो मशीन से बनाता था, और जो भारत है वो उसका एक बहुत ही अच्छा कंज्यूमर था ब्रिटिश गुड्स का, और बहुत ज्यादा हम लोग के यहाँ से उसके यहाँ रॉ मटेरियल्स भी सप्लाई होता था इंडस्ट्रीज के लिए इंग्लैंड में।
ब्रिटिश अपना जो सामान था वो चीप बेचता था, मतलब सस्ता बेचता था, मशीन मेड क्लॉथ्स भारत में लेके आता था, और वो जो इंडियन का जो कॉटेज इंडस्ट्री था, यहाँ का जो कॉटेज इंडस्ट्री था, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इससे जितने भी क्राफ्ट्समैन थे, मिलियंस ऑफ क्राफ्ट्समैन, वो बेरोजगार हो जाते हैं। ब्रिटिश यहाँ से रॉ मटेरियल्स इंडिया से इंग्लैंड भेजते हैं अपने फैक्ट्रीज के लिए, और यहाँ पे इंडियन वेवर्स के लिए, जो भारतीय बुनकर थे, उनके लिए बहुत ही कम, कुछ भी बहुत ही कम बचता है। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हेवी ड्यूटीज भी इम्पोज कर दिया, जो भारतीय सामान बनाते थे उस पर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कर लगा दिए गए थे, और जिससे क्या हो गया कि जो भारतीय है वो अपना सामान ना बेच पाए और ना ही उनका कंपटीशन कर पाए। इसलिए जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारी संपत्ति भारत से लूट के और यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज लूट के इंग्लैंड लेके चले गए। What other measures did the British take to exploit India? To buy raw materials and sell their finished goods, they introduced steamships and railways. The railways opened a vast market to the British and facilitated export of Indian raw materials abroad. The railways connected the raw material producing areas with the exporting ports. As a result, British goods flooded the Indian market. But do you know that the railways played an important role in the national awakening of the country too? They let people and ideas come close together, something that the British had never anticipated. In 1853, Dalhousie opened the first telegraphic line from Calcutta to Agra. They also introduced the postal service to India. तो और भी बहुत सारे बड़े बड़े कदम उठाए गए थे भारत को शोषण करने के लिए, भारत को शोषित करने के लिए ब्रिटिश ने उठाए थे। उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए और अपने सामान को बेचने के लिए यहाँ पे स्टीमशिप्स और रेलवेज का इंट्रोडक्शन करवाया। रेलवे यहाँ पे जब ओपन हुआ था तो उससे बहुत बड़ा मार्केट खुल गया ब्रिटिश के लिए, और वो अपना सामान इंडियन मार्केट में बेच देते थे, और यहाँ का जो रॉ मटेरियल्स था वो अब्रॉड लेके चले जाते थे। ये जो रेलवे है वो कनेक्ट कर दिया, एक अच्छा सा रास्ता बना दिया, जो रॉ मटेरियल से यहाँ पे प्रोड्यूस होता था उसे आराम से वो अपने पोर्ट्स के पास ले जाके एक्सपोर्ट कर लेते थे, अपने बंदर के पास, बंदरगाह के पास लेके जाते थे और वहां से अपने यहाँ लेके चले जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश का जो बना हुआ सामान था उसमें भारतीय बाजार में उसका बाढ़ आ गया था। लेकिन आप क्या जानते हैं कि जो रेलवेज है वो एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, कि रेलवेज की वजह से ही हमारे देश में राष्ट्रीय जागरूकता फैलती है, और जो लोग हैं वो अपने पास एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। और जो ब्रिटिश है वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे, लेकिन रेलवे की वजह से एक हम लोग को भी फायदा हुआ था। 1853 में डलहौजी ने फर्स्ट टेलीग्राफिक लाइन कलकत्ता से आगरा के लिए ओपन किया था, और वही लोग ऐसे थे जिन्होंने भारत में पोस्टल सर्विस को भी शुरू किया था। Since land was the major source of revenue for them, the British thought of various means to get revenue from land. The colonial policy of intensifying land revenue demand led to a large number of peasants losing their land to revenue farmers, traders, and moneylenders. This was done through the Ryotwari and Meherwari systems. Permanent settlement of Bengal, Bihar, and Orissa did not recognize the hereditary rights of the peasants on land. On the other hand, if they failed to pay 10th, 11th of the entire produce, their property could be sold off. To prevent this situation, the peasants often borrowed money from the moneylenders at a high rate of interest. Sometimes they even sold their property to the moneylenders. Even the officials harassed the peasants who dared not seek justice at the courts for fear of further harassment. The new class of zamindars that were created by the British became their political allies. They supported them in times of need and acted as buffers between the British and the people. Some of them even supported the British against the freedom movement. The economic decline of peasantry and artisans were reflected in 12 major and numerous minor famines from 1770 to 1857. All these factors had to spread an anti-British feeling which ultimately culminated in the revolt of 1857. तो हम लोग तो यहाँ तक जान गए कि थे कि जो जमीन है वो ब्रिटिश के लिए एक ज्यादा बड़ा मुख्य सोर्स था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, और वो रेवेन्यू ज्यादा किससे कलेक्ट करते थे, तो इंडियन लैंड से।
तो उनका एक कॉलोनियल पॉलिसी था कि वो किसी तरह लैंड का जो रेवेन्यू है उसको हाई कर दे और वो किसानों से उस रेवेन्यू को किसी भी तरह से ले ले। जब किसान जो है उस रेवेन्यू को पे ना कर पाए तो वो क्या करते थे, उस लैंड को लेके फार्मर्स, ट्रेडर्स या जो मनी लेंडर्स है उस लैंड को लेके वो क्या करते थे, ऑक्शन में बेच देते थे और दूसरे जमींदार को वहां पे वो बुलाते थे। और ये जो होता था वो किस सिस्टम से होता था, रेटवारी और महलवारी सिस्टम, जिसे हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। और जो परमानेंट सेटलमेंट था बंगाल का, बिहार और उड़ीसा का, इससे कुछ ज्यादा जो किसान थे उनको तो फायदा तो हुआ नहीं। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर जो पूरा प्रोड्यूस जितना भी किसान ने उत्पन्न किया है अपने अनाज को, उसका वो क्या करते थे, उन्हें बहुत सारा उसका कर्ज, सॉरी, रेवेन्यू देना पड़ता था, ठीक है। और अगर वो उस रेवेन्यू को पे करने में फेल हो जाते थे, उनका जो प्रॉपर्टी था उसे बेच दिया जाता था। इस सिचुएशन से बचने के लिए किसान ने क्या किया, पैसे को बोरो करना, कर्ज कर लेना स्टार्ट कर दिया। और जो मनी लेंडर्स थे पैसे तो दे देते थे लेकिन बहुत ही हाई रेट इंटरेस्ट के साथ। और कभी कभी उनका प्रॉपर्टी बिक जाता था मनी लेंडर्स के यहाँ, क्योंकि जब वो इंटरेस्ट चुकाने में सक्षम नहीं थे तो जो मनी लेंडर्स थे उनकी जमीन को हड़प लेते थे। यहाँ तक कि जो ऑफिशियल्स थे वो भी किसान को हरास करते थे और किसान के पास न्याय के लिए कोर्ट भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि जो कोर्ट में भी जो आदमी रहते थे वो तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। यहाँ पे एक नए क्लास का राइज हुआ, जमींदार का, जो कि ब्रिटिश के द्वारा क्रिएट किए गए थे और ये उनके ही पॉलिटिकल अलाइंस के हिस्से थे। और जो जमींदार थे वो भी जरूरत के टाइम में किसानों की नहीं बल्कि ब्रिटिश की हेल्प करते थे। और कभी कभी वो ब्रिटिश के खिलाफ कभी नहीं जाते थे। और बाद में जब ऐसा कुछ उनको भी देखने को मिला कि उनसे भी जो जमीन है वो अगर रेवेन्यू देने में सक्षम नहीं है तो उनका जो जमीन है वो लेके दूसरे जमींदार के पास बेच दिया जाता है। तो बाद में जमींदार भी उनको भी जागरूकता मिलती है और वो भी ब्रिटिश के खिलाफ लास्ट में खड़े होते हैं। ये जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है किसान का या फिर जो आर्टिशंस का है वो बहुत ज्यादा मुख्य कारण था। और इसकी वजह से छोटे छोटे सुखाड़ आए, मीन्स खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं बचा 1770 से 1857 तक। यही सब कारण थे जो कि एंटी ब्रिटिश का फीलिंग जो था वो लोगों के अंदर बढ़ गया और 1857 का विद्रोह का शुरुआत होता है। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण। The British were not very sensitive to the feelings of the vast mass of Indian people. Social reforms against sati, female infanticide, widow remarriage, and education of women made many people unhappy. With an objective to convert people, the Christian missionaries opened schools and colleges. They also needed a population which was educated and modern enough to buy their goods, but not enough to prove detrimental to British interest. It made the people believe that the government was in collusion with the missionaries to eradicate their religion and convert them to Christianity. The passing of Act uh, 21 of 1850 enabled converts to Christianity inherit ancestral property. The new law was naturally interpreted as a concession to Christian converts, which further created anxiety and fear among the people. तो जो ब्रिटिश थे वो सेंसिटिव नहीं थे हमारे फीलिंग्स के बारे में, वो इंडियन पीपल्स के फीलिंग से वो कोई वास्ता ही नहीं रखते थे। यहाँ पे कुछ सामाजिक कुप्रथा थी जैसे कि सती प्रथा हो गया या फिर कन्या भ्रूण हत्या हो गया, या फिर जो विधवा थे उनका फिर से शादी नहीं करने दिया था, या फिर वुमेन को एजुकेशन नहीं दे रहा था। ये सब कुछ चीजें थी जो लोगों को अनहैप्पी बनाता था। लेकिन जो ब्रिटिश आए उन्होंने पहले क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे खोला, स्कूल खोला और कॉलेज खोला, ठीक है। अब उनको एक ऐसी जनसंख्या चाहिए थी कि जो लोगों को शिक्षित कर सके, मॉडर्न एजुकेशन दे सके, जिससे वो उनके सामान को खरीदे, लेकिन इतना भी वो लोग पढ़ ना जाए कि जो ब्रिटिश के इंटरेस्ट के खिलाफ वो खड़े हो जाए। इससे लोगों को विश्वास हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे मशीनरी क्यों खोले, ताकि उसके रिलीजन को इरेडिकेट कर सके, खत्म कर सके। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको उनके अंदर क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे, वो लोगों को क्रिश्चियन में चेंज करना चाहते थे। यहाँ पे एक एक्ट पास हुआ था 21 ऑफ 1850, ठीक है। इसमें लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया और उनका जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तभी मिलेगा जब वो क्रिश्चियन बन जाएंगे। और ये नए कानून के मुताबिक जितने भी क्रिश्चियन हैं, जब वो क्रिश्चियनिटी जितने भी लोग जब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते तो उन्हें
उनका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलता था, वरना फिर नहीं मिलता था। और इससे जो लोग थे उनके अंदर इससे बहुत ज्यादा दुख भर गया और वो डर रहे थे। The religious sentiments of the sepoys were hurt in 1806 in the Madras Presidency. The Hindus were asked to remove their caste marks from their foreheads, and the Muslims were asked to trim their beards. Though the sepoy uprising was put down, it was evident that the British neither understood nor cared for the Indian soldiers. The loyalty of the sepoys was further undermined by certain military reforms which required them to serve overseas. This outraged their religious feelings. They had an aversion to overseas services as travel across oceans meant loss of caste for them. तो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ भी अंग्रेज शासक खड़े हो जाते हैं और वो सिपाहियों को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाते हैं 1806 में मद्रास प्रेसिडेंसी में। हिंदुओं से क्या बोला जाता है कि वो अपने कास्ट मार्क्स जो फोरहेड पे उनको हटा ले, और जो मुस्लिम्स हैं उनको अपने दाढ़ी को कटवाने के लिए बोला जाता है। इसलिए जो सिपाही थे उन्होंने उनको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा क्योंकि ये उनके रीजन से कनेक्टेड था। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो ना ही कभी हमारे इंडियन सोल्जर्स की फीलिंग्स को समझ पाए और ना ही वो समझना चाहे, और जितने भी सिपाहीज थे वो जब ब्रिटिश के लॉयल थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग लॉयल्टी छोड़ के अपना फिर से इनके अंदर भी अवेकनिंग हुआ, और उसके अंदर रिलीजियस फीलिंग्स था जिसको ब्रिटिश नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक ग्रुप बनाया और वो ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। Next is discontent in the army. The soldiers in the East India Company's army came from peasant families, which were deeply affected by the government's policies. Indian soldiers were not given posts above that of subedars. Some sepoys wanted special bhatta allowance if sent an overseas duty. Sometimes they were paid, but most of the time they were not. They therefore started distrusting their officers. These instances contributed in their own way to revolt of 1857. The soldiers had other grievances too. They were paid salaries less than their English counterparts. As a result, the morale of the Indian sepoy was very low. On the other hand, when the soldiers refused to cross the Black Water, that is, oceans and seas, because their religion forbade it, the British were ruthless on them. Okay. तब क्या होता है कि जो सोल्जर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में जो काम कर रहे थे वो कहाँ से आते थे, किसान परिवार से। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से ये लोग भी बहुत ही अंदर तक प्रभावित थे। भारतीय सैनिक को सूबेदार की पोस्ट से ऊपर कोई पोस्ट नहीं दिया जाता था, और कभी कभी कुछ सिपाही हैं उन्हें उन्हें क्या चाहिए था, स्पेशल भत्ता या अलाउंस चाहिए था जब वो विदेशों में जाके ड्यूटी करे। कभी कभी तो उन्हें ये भत्ता दे दिया जाता था, लेकिन ज्यादातर उन्हें नहीं दिया जाता था। इसलिए इन्होंने अंग्रेजों पे अंग्रेजों के जो ऑफिसर्स हैं उन पे उन्होंने अविश्वास किया, मीन्स उनको उन पे विश्वास नहीं रहा। और ये जो है इसकी वजह से 1857 का युद्ध में एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है। जो सैनिक थे उनको बहुत ज्यादा इन सबसे बहुत ज्यादा दुखी थे, और उनको बहुत ही कम सैलरीज दिया जाता था। जो इंग्लिश ऑफिसर भी सेम पोजीशन पे है, इंडियन ऑफिसर भी सेम पोजीशन पे है, लेकिन इंडियन ऑफिसर को इंग्लिश ऑफिसर से कम पैसा दिया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप जो भारतीय सिपाही थे उन्हें तो कम पैसा मिला और वो इससे बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखें तो जो सैनिक थे वो ब्लैक वाटर, इट मीन्स क्या चीज, ओशन और सीज को क्रॉस करने में मना कर दिए, क्योंकि ये उनका जो धर्म है इजाजत नहीं देता था। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो इसके प्रति भी बहुत ज्यादा ड्यूड हो चुके थे और जबरदस्ती उन्हें भेजते थे। नेक्स्ट है क्या, इमीडिएट कॉज, ऐसा क्या कारण बन गया कि ये 1857 का युद्ध चल नहीं पाया और ये हुआ। Strong resentment was rising among the Indians, and they were waiting only for an occasion to revolt. The stage was all set, only a spark was needed to set it on fire. Introduction of greased cartridge in 1856 provided that fire. The government decided to replace the old-fashioned musket brought back by the Enfield rifle. The loading process of the Enfield rifle involved bringing the cartridge to the mouth and biting off the top. There was a rumor among
the sepoys in January 1857 that the grist carcass contained the fat of cow and pig. The cow is sacred to the Hindus and the pig is forbidden to the Muslims. The sepoys were now convinced that the introduction of grist carcass was a deliberate attempt to defile Hindu and Muslim religion and their religious feelings. This is sparkle of the revolt of sepoys on 29th March 1857. लोग तो बहुत ज्यादा दुखी थे अंग्रेजी शासकों के खिलाफ में, और जितने भी इंडियंस थे उनमें सब कुछ पहले से सेट हो चुका था। वो बस एक विद्रोह करने का मौका चाहते थे और उन्हें बस एक चिंगारी चाहिए था कि बस आग लग जाए। तो क्या हुआ कि 1856 में ग्रिस्ट कार्टेज का इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ओल्ड फैशन जो मस्केट है उसे हम लोग ब्राउन बैग्स से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। उन्होंने इनफील्ड राइफल को हमारे इंडियन सेपोज के बीच में इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें एक लोडिंग प्रोसेस था राइफल में, जिसमें जो कार्टेज था उसको मुंह से काटना पड़ता था, उसके बाद वो जाके काम करता था। तो 1857 में जनवरी में सिपाहियों के बीच में एक र्यूमर फैल गया कि ये जो ग्रिस्ट कार्टेज है इसमें गाय और सुअर का फैट है, और जो गाय है वो हिंदुओं के लिए तो धार्मिक है, मतलब कि बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं हिंदू, और मुस्लिम्स के लिए जो सुअर है वो मना रहता है कि वो उसका कुछ भी चीज यूज नहीं करेंगे। तो ये जो सैनिक थे हमारे वो पूरी तरह से कन्विंस हो चुके थे, और इनके बीच में जब इंट्रोडक्शन करवाया गया था इस ग्रीस कार्टेज का, तो उन्होंने क्या सोचा कि ये हिंदू और मुस्लिम के धर्म के खिलाफ है, ये हमारे धर्म के फीलिंग्स को तो समझ नहीं रहे। और यही एक चिंगारी था जो 1857 का युद्ध के लिए एक बड़ा सा काम किया, और 29 मार्च 1857 को ये युद्ध स्टार्ट भी हो गया था। कोर्स ऑफ द रिवोल्ट। A sepoy called Mangal Pandey was the first soldier who openly disobeyed orders. He killed 2 English officers at Barakpur near Calcutta on 29th March 1857. He was arrested, tried, and executed. The regiments of Barakpur were disbanded. The news of Mangal Pandey very soon reached other parts of the country and resulted in open revolts. तो एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। ये एक ऐसे सैनिक थे जिन्होंने सबसे पहले बार जितने भी ऑर्डर्स दिए गए थे उसका वो अवमानना कर देते, मतलब उसे मानते नहीं है। वो इंग्लिश ऑफिसर को मार देते, 2 इंग्लिश ऑफिसर्स को बैरकपुर में कलकत्ता के पास 29 मार्च 1857 को। उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर उनका जेल में ट्रायल चलता है और फिर उसे एक्सिक्यूट किया जाता है। तो ये जो रेजिमेंट थे बैरकपुर के उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, और जो मंगल पांडे का जो न्यूज है वो जल्द ही पूरे देश में फैल जाता है, और इससे आम खुले तौर पे ये विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। तो मंगल पांडे की वजह से ये जो विद्रोह है वो पूरे तौर पे स्टार्ट हो गया था। The most decisive uprising occurred at Meerut, where 85 sepoys of the cavalry regiment were sentenced to 2 to 10 years imprisonment for refusing to use greased cartridge. The very next day, on 10th May 1857, 3 regiments broke into open mutiny. They killed British officers and broke open the prison to release their comrades. They began to march towards Delhi, where they were joined by the local infantry and the common people. The rebels captured Delhi and killed many British officers. They declared the Mughal Emperor Bahadur Shah as the Emperor of India. तो एक और क्या होता है कि मेरठ में 85 सैनिकों को जो कैवलरी रेजिमेंट से थे उन्हें 2 से 10 साल की जेल की सजा दी जाती है, क्योंकि उन्होंने ग्रिस्ट कार्टेज को मना कर दिया था कि हम इसका यूज नहीं करेंगे। और उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, 10 मई 1857 को 3 रेजिमेंट से उन्होंने एक खुद का बैठक बुलाया और उन्हें ब्रिटिश के ऑफिसर्स को मार दिया और अब जेल को तोड़ डाला, और उन्होंने अपने साथियों को आजाद करवाया। उसके बाद वो दिल्ली की ओर भाग गए, और वहां पे वो उन्होंने लोकल इन्फेंट्री और कॉमन पीपल से जाके हाथ मिला लिया, और उन्होंने विद्रोह कर दिया दिल्ली में, और बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मार दिया। और ये वह सैनिक थे जिन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। फ्रॉम दिल्ली
all to spread to other places. In Kanpur, Nana Sahib was declared the Peshwa. His troops were commanded by Tatya Tope and Azimullah. At Lucknow, Begum Hazrat Mahal was assisted by Maulvi Ahmadullah. In Jhansi, Rani Lakshmibai and in Ara, Kuwar Singh led to the revolt. Khan Bahadur Khan was the leader in Bareilly. तो जब दिल्ली से इसका विद्रोह स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे पूरे भारत के अलग अलग जगहों पे फैलना शुरू कर देता है। कानपुर में नाना साहब ने पेशवा को घोषित कर दिया कि पेशवा हमारा है। उनके जो सैनिक थे उस तात्या तोपे कमांड कर रहे थे और अजीमुल्ला, और लखनऊ में बेगम हजरत महल को असिस्ट कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और आरा में कुंवर सिंह ने विद्रोह छेड़ दिया। खान बहादुर खान बरेली के नेता थे, वो वहां पे रिवॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं। The loss of Delhi greatly lowered the prestige of the British. To recover their lost prestige, they took help of the loyal forces from Punjab. The siege lasted 4 months and Delhi was finally recaptured on 10 September 1857. It took another 10 months of fighting before the Governor General Lord Canning could proclaim the end of the mutiny on 8 July 1858. तो जब दिल्ली उनके ब्रिटिश के हाथ से निकल गया तो इसके क्या हुआ कि उनकी इज्जत में कमी आ गई, ब्रिटिश की इज्जत में। और इस लॉस्ट को वो पूरा करने के लिए, कवर करने के लिए क्या बोलते हैं, पंजाब से फोर्सेस को बुलाते हैं। और ये कुछ फिर 4 से 5 महीने लगता है, फिर जो दिल्ली उसको फिर से रिकैप्चर कर लेते हैं। 10 सितंबर 1857 को ये जो ब्रिटिश थे दिल्ली को फिर से रिकैप्चर कर लेते हैं। और 10 महीने और लगते हैं, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे वो इन म्यूटिनी से लड़ाई लड़ रहे थे। और फिर बाद में 8 जुलाई 1858 को उन्होंने घोषित कर दिया कि अभी जो म्यूटिनी इनका कोई काम नहीं होगा। Stiff resistance had been offered to the British force by the heroic trio of the rebellion, Rani Lakshmibai of Jhansi, Tatya Tope, and Kuwar Singh. Rani Lakshmibai led the rebel ranks mounted on horseback. She boldly faced the British cavalry, but when her horse stumbled and fell, she was killed. According to the British commander-in-chief, Sir Hugh Ross, she was the best and bravest military leader of the rebels. Kuwar Singh was killed in another battle in Bihar. Tatya Tope was captured while he was asleep. He was hanged after trial. This was the end of the heroic trio and the rebellion was finally suppressed by the British. तो यहाँ पे बहुत सारे रेसिस्टेंस होते हैं, जिससे जो ब्रिटिश फोर्स थे उनका जो हीरोइक ट्रायो था रिबेल का, उसमें जो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, तात्या तोपे और कुंवर सिंह, इनका खात्मा किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी और उन्होंने बहुत अच्छा लड़ाई लड़ा था। वो घोड़े की पीठ पे बैठ के और ब्रिटिश सैनिकों का बहुत अच्छे से सामना कर रही थी। और जब उनका जो घोड़ा है जब वो गिर जाता है तो रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया जाता था। ब्रिटिश कमांडर के मुताबिक, उनके अनुसार, जो उनके चीफ थे ब्रिटिश कमांडर के, सर हग रोज, उनके मुताबिक क्या था कि जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी वो एक बेस्ट और सबसे बहादुर मिलिट्री लीडर थी जिन्होंने बहुत अच्छा लड़ाई लड़ा था। कुंवर सिंह को मार दिया जाता है बिहार के युद्ध में, और जो तात्या तोपे थे जब वो सो रहे थे तो उनको पकड़ लिया जाता है और उन्हें पहले ट्रायल किया जाता है, उसके बाद उनको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। और इनकी वजह से पूरा जो 1857 का विद्रोह था, ब्रिटिश सरकार उसको कुचल के रख देती है। The old Emperor Bahadur Shah, along with his 2 sons, was taken prisoner. After a trial, he was deported to Rangoon, where he died in 1862 at the age of 87. His sons were shot dead at Delhi without a trial. We must now look into the causes for the failure of the revolt. तो जो बूढ़े सम्राट हो चुके थे बहादुर शाह जफर, उनके 2 बेटे और उनको जेल में भेज दिया जाता है। और ट्रायल के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो 1862 में 87 साल की उम्र में मर जाते हैं। उनके जो बेटे थे उन्हें दिल्ली भेज दिया जाता था और बिना ट्रायल के उनको भी मार दिया जाता है। और हम लोग अब यह जानेंगे कि ये जो हमारा विद्रोह था 1857 का, वो फेल कैसे हो गया। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.